यदि मौका मिल रहा है हमें भगवान की सेवा का, उसके लिए एक्साइटेड हो। I mean, I think to learn something new, I think it's something that you should be excited about, maybe. Life should always be lived with excitement, not with ego. There's a difference between excitement and ego. Let's not confuse the two. Excitement should always be very high. Ego should always be very low. I am doing this का I जब important हो जाता है तो ego. And doing this में जब मन लगता है तो excitement. तो excitement तो 110% रहना चाहिए हमेशा. और हमेशा याद रखो कि किस चीज पे मैं खुश रहूंगी, किस चीज पे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. अगर तुम वो काम कर रहे हो और एक्साइटेड हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम तो सही कर रहे होगे. और अगर ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए एक्साइटेड हो, जिसमें मैं खुश नहीं होंगी, तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हो. तुम्हें बिल्कुल सॉरी बोलना चाहिए इसी समय, है ना. तो एक महीने की अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है पुलकित को, तो पता है किस चीज पे हाँ मिलेगी, किस चीज पे ना ही ना मिलेगी. आ रही बाथरूम में. तो आई कांट हियर यू नो. नहीं, अभी चढ़ा दीजिए ना. मेरे हाथ स्पेशल है क्या? आप ही चढ़ा दीजिए भगवान. अच्छा, तो excited? Yeah, always be very 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 excited. लाइफ में जो करने का मौका मिल रहा है और आज का दिन मिल रहा है, उससे ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं है. उसके लिए हमेशा थैंक यू है और उसके लिए हमेशा एक्साइटमेंट रहना चाहिए. आज की सांस मिल रही है और तुम्हें तो चंबा की सांस मिल रही है, बहुत अच्छी बात है. वाह वाह, क्या बात. जो इंसान देवी के मायके में बैठा हुआ है उसको तो बिल्कुल एक्साइटेड होना चाहिए. वैसे भी मम्मी घर है और वैसे भी मम्मी घर है, नानी हाउस, है ना. ऑल एक्साइटेड, वेरी गुड. तो पिछली बार हमने कुछ बातें की थी, तान्या ने रिवाइज किया, क्योंकि पिछली बार की क्लास तेरी मिस हो गई थी. नहीं हुई थी? मिस हुई थी ना. मैंने वेडनेसडे को करी थी क्लास, ट्यूसडे मेरा पॉसिबल नहीं था. तेरी कॉफी आ गई. Oh, you were there. So do you remember what we were talking about? पंखा थोड़ा बंद कर, बात सुनाई नहीं दे रही. Didi, आपकी आवाज, am I audible now? Yeah. Didi, I was there, but I was a little, I mean, because I had just come back, so I was a little on and off in the class. I didn't do the revision, and this time I also didn't take notes, so I'm sorry. I'll just catch up this week. But what stayed with you? Did anything stick with you? What I remember, I think sorry. What sorry.
what stayed with me, I think, if I correctly remember, is the part where you said that one of the most important things to learn from Ramji's life is how to conduct yourself, like what is the right dharma. Because deep down, we all know what is right. I mean, with our, we may not agree to the choices that we have to make, which are technically what dharma suggests. And that is where we have to understand from the stories and the examples that even in the uh, smallest of the gestures and the things, like you explain about, um, uh, I don't remember the story from this class, but कौन आ रहा है बेटा? मेरा आ रहा है दीदी? नहीं दिशा का. So so that stayed with me, and it is quite, I mean, it is something that we all experience in our daily lives, that we know that every time when we have to make any choice, हमको पता है, जैसे आपने एक दूसरी क्लास में you also explained, and I always tied back to the fact that Guru Kataksh, dharma is what your guru will say. Like, whenever we get tempted, or whenever we are in that vulnerable situation wherein either we want to give up or take decision or do things that we know deep down ki either that would not please you, like, like, I don't know, aap Pulkit ke sath koi discussion kar rahe the, I missed that, but I'm guessing, you are also trying to say this ki जो मुझे अच्छा लगे, मतलब वही है, धर्मा भी वही है, और हमको पता भी है, बट वही सबसे मुश्किल बात है. एंड आई थिंक ग्रेजुअली जैसे जैसे हमें और स्टोरीज और पता चलेगा इन द क्लासेस, वी विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि छोटी से छोटी बात भी. Little, when you were little, you read that fairy tale, no fairy tale, folk tale, the Red Riding Hood. What was that? Little Red Riding Hood. Hansel and Gretel. Everybody knows these little stories, right? And they are made just to tell people exactly this, right? The longer way around is the safer path. The longer way around is a better way to go. When you cut shortcuts, it will always come back to bite you. Always. When you're living only for the moment and for desire, it will always come back to bite you. When you're living in the moment with ego, it will always come back to bite you. और अगर हमने कभी कुछ झूठ बोल दिया या गलत रास्ता ले लिया, उसका पश्चाताप तो है ही. मैं नहीं करूंगी, आप ही करोगे. फिर देखो कौन कितना सफर करता है. ले लिया हमने गलत रास्ता, उसके बाद क्या है? उसके बाद भी यही कि भगवान आके हमें बचा ले. गलत तो हमने ही किया, फिर भगवान आके हमें बचा ले, या भगवान हमारा काम पूरा कर दे, या गुरु के मुंह से एक बार बात निकल जाए तो मेरा काम हो जाए. बोलता रहा, ये बोलता रहा, पासपोर्ट देता, पासपोर्ट देता, पासपोर्ट देता, पासपोर्ट. थक गई मैं भी, मैंने कहा चल मिल जाए. कभी सत्संग में बैठे तो कुछ भगवान के पास बैठे हो, गुरु के पास बैठे हो, भक्ति सीख लो. मांगने के लिए और कुछ नहीं मिला, पासपोर्ट. चलो ये भी सही है. हम देवी उपासना करते हैं, दोनों चीज मिलेगी. भोग भी मिलेगा, योग भी मिलेगा. तो बहुत मैं आप लोगों के माध्यम से, बिकॉज ऑफ all of you and my deep, I will not say desire, it's an instruction that I'm receiving that I have to do. मैंने बहुत कोशिश की कि रामायण का पाठ हो जाए.
मेरे को अवधि इतनी अच्छी आती नहीं है, खैर संस्कृत भी नहीं आती थी, अवधि भी सीख लेंगे। भगवान तो है ही, सब कुछ जानता ही है, सिखाई देगा। तो आप लोगों के माध्यम से मुझे ये रामायण का पाठ करने मिल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, मेरी माँ को ज्यादा अच्छा है, वो सुंदरकांड का पाठ रोज करती है, तो उनकी अवधि थोड़ी ज्यादा अच्छी है, उनको ज्यादा समझ में आता है। मेरी बुद्धि थोड़ी मोटी है, मुझे कम समझ में आता है, मगर उनकी क्लास चली नहीं, रामायण तो करनी थी, तो मैंने कहा मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि रामायण तो सिखानी बहुत जरूरी है, सुननी भी जरूरी है, बोलनी भी जरूरी है, एक 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 चौपाई बहुत जरूरी है। जो तुलसीदास जी ने लिखी, जो वाल्मीकि जी ने लिखी, जो जो कथा है ये भगवान की, ये बहुत जरूरी है, बोलनी बहुत जरूरी है। और इसको बोलने से क्या होता है ना, मन एकदम, वैसे हम लोग साधना जब करते हैं ना, और ये बहुत बार मैं बोलती हूँ, साधना करने से ईगो बहुत बढ़ जाता है। स्पॉटलाइट से हटा देती हूँ, फिर तू कंप्लेन करेगी दीदी स्पॉटलाइट छोड़ेगी। मन में जब हम लोग साधना करते हैं, हम है ना, 4 सहस्त्रनाम कर लिए, 10 सहस्त्रनाम कर लिए, यज्ञ कर लिया, हवन कर लिए, अभिषेक कर लिया, अभी ये साधना करने से ना ईगो बहुत बढ़ जाता है। और चाहे आदमी योगा के माध्यम से ईगो भी कंट्रोल कर ले, थोड़ा सा योग करेंगे, लिटिल बिट ऑफ प्राणायाम, लिटिल बिट ऑफ आसना, लिटिल बिट, तो वो ईगो भी थोड़ा यम नियम से कंट्रोल में आ जाता है। ज्यादा साधना करने से गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। हाथ हाथ खड़ा करो जिस जिसको आता है। साधना जैसे शुरू करेंगे तो गुस्सा भी बढ़ जाएगा। थैंक यू। ये थोड़ी बाय प्रोडक्ट है साधना की। हम दुर्वासा ऋषि की कहानियां सुनते ही आए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका गुस्सा खराब गुस्सा है, अल्टीमेटली कुछ अच्छा ही होगा उससे, मगर ये इतना गुस्सा भी ना आए साधना के साथ, इसके लिए राम कथा करनी चाहिए। अगर हम राम जी का नाम लगातार लेते रहेंगे, अगर हम राम जी का ध्यान लगातार करते रहेंगे, तो वैसे ही हो जाएंगे आशुतोष, भगवान शंकर की तरह से हो जाएंगे, बिल्कुल मर्यादा के अंदर, और बहुत ही सुंदर और सुशील और सीधे, बिल्कुल स्पष्ट, कोई बात ऐसी बोलनी नहीं कि दूसरे को बुरा लगे। क्योंकि राम जी के भक्तों का नाम तो मैंने बताया नहीं आपको, राम जी के भक्तों में सबसे बड़े भक्त भगवान शंकर, और उनको तो हम सभी जानते हैं ना, बचपन से, जब से पैदा हुए, जब से हमने कोई थोड़ी बहुत भी कहानी सुनी है, तब से शिव जी को तो हर कोई प्यार करता है। कौन ऐसा है यहाँ पे जो शिव जी को प्यार नहीं करता? कोई है? और बचपन से हम सारे ही पैदा ही होके शैवाइट बन गए, पैदा ही शैवाइट होते हैं, है ना? शिव जी को तो हर कोई प्यार करता है, क्योंकि वो रूप ही इतना सुंदर है। और ये सुंदरता कैसे आई? इतनी साधना के साथ। जो गुस्सा है वो तो उनका एक अलग फॉर्म बन गया, जो हम देखते हैं रुद्र, एक अलग फॉर्म बन गया। बट जो ये शिव जी का स्वरूप है, ये इतना सुंदर है, ये इसलिए है क्योंकि वो राम जी की साधना करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं। तो ये राम कथा बोलने का एक बहुत अच्छा रीजन है कि ये राम कथा बोलते बोलते मेरी, और सुनते सुनते आपकी, ये गुस्सा करने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, गुस्सा नहीं आएगा फिर, वाणी साफ हो जाएगी। तो हमने उस दिन बात भी की थी, बुद्धि साफ हो जाएगी, वाणी साफ हो जाएगी। ये तुलसीदास जी ने ये छोटी छोटी चीजें बोली है ना, ये एक्चुअली हो जाएगा कथा बोलते बोलते, और आप सुनते सुनते आप देखेंगे कि सब साफ हो गया, कितना साफ हो गया।
तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। भगवान राम की कहानी सुनते रहो, एक एक चौपाई बुनते रहो। मैं कल इसको बता रही थी दिशा को, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक आदमी आया किसी कथावाचक के पास या किसी गुरु के पास, गुरुजी ने बोला था, 2 लोगों को बोला था कि तुम रामायण का पाठ करो। तो एक आदमी आया इतने कुछ दिन के बाद, भगवान मैंने तो पाठ किए, कितने पाठ किए, अब तक 90 हो गए, 100 होने वाले हैं पूरे, 90 पाठ किए, आज तक कोई डिफरेंस नहीं आया, मेरा ईगो वहीं पर है, मेरी बोलचाल की भाषा वहीं पर है, मेरी सुनने की शक्ति बिल्कुल है ही नहीं, पेशेंस ही नहीं है, और ग्रीड जाती नहीं, इतना मुझे चाहिए, पैसा मुझे बहुत प्यारा है, अभी भी प्यारा है, जाती नहीं, क्या करें? आपने बोला था राम कथा करो, मैंने तो 90 बार कर ली। ये 90 बार कर तो ली, एक बार समझ लेते। दूसरा आदमी आया, बोले राम कथा की प्रभु, मैंने तो एक ही चौपाई पढ़ी, उसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया। मैं काहे दूसरी काहे नहीं पढ़ी, एक ही जीवन में उतार लूं तो आगे बढ़ूं, एक ही नहीं उतार पाया तो दूसरी कैसे कर लेता। जो समझना शुरू करेंगे तो एक भी नहीं उतार पाएंगे, और अगर खाली पढ़ने के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये रामायण पाठ भी होना चाहिए, पाठ बहुत अच्छी चीज है, पर उसको समझना भी पड़ेगा, और समझ के जीवन में उतारना भी पड़ेगा। और ये कोई मुश्किल बात नहीं, अपने आप हो जाएगा, अगर तुम समझते जाओगे, मैं बोलती जाऊंगी, आप समझते जाओगे तो ये अपने आप हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा मेहनत और करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू शो अप, ऑल यू हैव टू डू इज शो अप। भगवान ने जब योग बताया तो गीता में बहुत हार्ड बताया, और जो रामायण में बताया वो बहुत सिंपल है। अगस्त्य मुनि ने कथा करी। अगस्त्य मुनि ने एक्चुअली कथा का आयोजन किया ताकि भगवान श्री राम की कथा करेंगे, और कथा का आयोजन हुआ तो भगवान शंकर और माता सती दोनों पधारे। हालांकि तो भगवान है और भक्त भी हैं, तो उनको स्थान बड़ा मिलना चाहिए, पर भगवान शंकर बैठे नीचे। तुलसीदास जी इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान शंकर बैठे नीचे, बैठे कि जो जिसके मुख से अभी मैं भगवान की कथा सुनूंगा वो तो ऊपर ही है, उसका स्थान ऊपर ही है। कितनी फाइन बात है कि हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके मुख से राम जी का नाम निकलेगा, जिन जिन उनकी कथा निकलेगी तो ऊपर ही है। तो भगवान नीचे बैठे, और ऑफ कोर्स अगस्त्य मुनि ने भी भगवान को प्रणाम करके कथा सुनाई, पूरी कथा सुनाई। और कथा सुनाने के बाद भगवान शंकर ने बोला, मुनिवर आपकी गुरु दक्षिणा, इतनी सुंदर कहानी आपने सुनाई, इतनी सुंदर कथा करी, गुरु दक्षिणा। अब भगवान तो मांगने वाले, मतलब देने वाले भगवान शंकर, और सुनाने वाले अगस्त्य ऋषि, तो मतलब अब ये सुनने वाली चीज है कि उन्होंने क्या मांगा। नहीं तो कथा तो मैंने सुनाई, अब ये जो कथा के कैरेक्टर है ना भगवान राम, बस आप ऐसा कर दो कि इनसे मेरा निरंतर अनुराग बना रहे, ये प्यार ये भक्ति बनी रहे,
तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरी गुरु दक्षिणा आप दीजिए। और ये इतना सुन के दोनों रोने लगे, क्योंकि राम जी का नाम फिर आया, और फिर भगवान शंकर भी रोने लगे और अगस्त्य मुनि भी रोने लगे। तो दोनों ने ऐसे मन में प्रभु से कि भगवान आपका नाम सुन के इतना मन द्रवित हो जाता है, अगर आप दर्शन दे देंगे तो क्या हो? आपका खाली नाम सुन के ऐसा लगता है कि राम, अगर आप दर्शन, अब ये हर किसी को नहीं होता राम, तो सब कितने लोग बोलते हैं और कितने लोग, तो जब कोई राम राम बोलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने बताया ना, जब साधना करते तो गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा आता है मेरे को, कोई राम राम बोलता है तो फिर राम पहले समझ तो लो फिर बोलो। भगवान शंकर बोले राम तो समझ में आता है। हम तो अभी इस लायक ही नहीं है कि राम जी का नाम भी ले सके। अपने बड़ों का नाम वैसे भी नहीं लेना चाहिए। तो दोनों ने मन में बोला कि हे प्रभु, आपका नाम लेने पे इतना मन व्याकुल हो रहा है, इतना, इसका कोई शब्द नहीं है हिंदी में, होगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, यू नो, मर्म, लाइक बहुत सॉफ्ट हो जाता है मन बहुत सॉफ्ट हो जाता है, लगातार रोना आता है, क्योंकि वो इतनी सुंदर परफेक्ट बात है ना। कभी कभी सुंदरता जब ज्यादा दिखती है ना, तो एकदम ऐसे लगातार रोना आता है कि ऐसा मन आपने कर दिया, द्रवित कर दिया मन। तो अगर दर्शन हो जाते तो, खैर उस समय में जब कथा कही जा रही थी, त्रेता युग में सीता जी का हरण हुआ था। कभी imagine multiple dimensions and times running together, तो बहुत सारे युग एक साथ चलते हैं। तो राम कथा पूरी हुई और उस समय में त्रेता युग जो चल रहा था, उसमें माता सीता का हरण हुआ था। तो भगवान को तो भगवान है, तो दोनों अगस्त्य मुनि और भगवान शंकर, दोनों के मन में ये इच्छा हुई कि दर्शन हो जाए। तो राम जी तो राम जी हैं, तो उनको तो सब पता ही है, पर वो क्या करे, सीता सीता करते करते, सीता माता तो श्रीलंका में साउथ में है, और कैलाश पर्वत ऊपर है, जहां पर कथा चल रही थी, कैलाश के नीचे, मतलब हिमाचल में कहीं कथा चल रही हुई। तो सीते सीते करते करते भगवान चले नॉर्थ, बिकॉज उनको बुलाया गया ना। वो नॉर्थ की तरफ गया, चलो इधर देखते हैं लक्ष्मण, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं करके वो भगवान गए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और जहां पर वो पहुंचे, वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम जी पहुंचे, तो भगवान शंकर ने उनको साष्टांग नमस्कार किया। और नमस्कार करके मतलब वो तो बड़े प्रसन्न हो गए, ऑफ कोर्स, वो तो सब ठीक था। और राम जी व्याकुल थे सीता माता के लिए, मगर भक्तों को कैसे छोड़े, तो वो भी पहुंच गए थे। इसका वर्णन है तुलसीदास जी ने किया है। तो जब शिव जी अपना नमस्कार करके उठे, तो सती माता ने नमस्कार नहीं किया। सती माता बोली कि शिव जी बोले कि माता आप भी नमस्कार कर लीजिए। तो माँ बोली ये इतने व्याकुल है,
इतना सीता सीता, अगर ये भगवान है तो इनको सीता पता नहीं कहाँ है माता। ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं? तो भगवान शंकर ने बोला कि अगर आप इतनी व्याकुल है और आपको अगर इस पूरी कथा में भी आपको नहीं दिखा, समझ में नहीं आया, तो आप एक टेस्ट ले लीजिए। वो टेस्ट है, आप एक टेस्ट ले लीजिए। वैसे कायदे के हिसाब से जहां पर आपसे बड़े लोग झुकते हैं वहां आपको प्रणाम वैसे ही कर देना चाहिए, है ना। अगर पिताजी कहीं झुक रहे हैं तो बेटे को वैसे ही नमस्कार कर देना चाहिए। सोचने की बात ही नहीं है। अगर पति कहीं पर नमस्कार कर रहे हैं तो पत्नी को अपने आप ही नमस्कार कर देना चाहिए, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। अगर आपके गुरु कहीं नमस्कार कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को भी नमस्कार कर लेना चाहिए। अब ये देखने वाली चीज है कि माता ने नमस्कार नहीं किया और उसका दंड तो उनको भोगना पड़ा। वो नमस्कार नहीं की, दंड तो उनको भोगना पड़ा। पर कहानी ऐसे चलती है यार रामचरितमानस के हिसाब से कि माता गई टेस्ट लेने के लिए। अब टेस्ट लेने के लिए अगर भगवान ने माता को भेजा तो ये भी खुद भी साथ जा सकते थे। अब भगवान नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए। क्यों क्यों नहीं गए? भगवान शंकर को टेस्ट लेना है क्या? वो तो जानते भगवान है। टेस्ट लेने के लिए अज्ञानता पूर्वक माता गई, का ज्ञान पूरा नहीं था, अज्ञानता पूर्वक माता गई। और भगवान राम जी जा रहे थे वापस, तो माता ने सीता माता का भेष बना लिया। ये तो मैंने पहले भी बताया था, पर ये नहीं बताया था कि वो सीता माता का भेष बना के आगे आगे चली। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा कि सीता माता के भेष में कोई आगे आगे चल रहा है, तुरंत बोला, भैया ये एक दूसरी स्वरूप है, मैं मारूं इसको। क्यों बोला? क्योंकि सीता माता हमेशा भगवान राम के पीछे चलती थी ना, कभी आगे नहीं गई। जो आगे चली तो लक्ष्मण जी भी पहचान लिए कि ये सही नहीं है। बोले नहीं, राम जी बोले, क्या बोले होंगे, मार दो, जाओ लक्ष्मण, कर लो अपने मन की। वो राम जी हैं, आप खुद ही मना कर रहे हो, नहीं बोले होंगे ऐसा। गए, उन्होंने प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया। माता कैसे आना हुआ, आप किस वजह से आई? तो जैसे उन्होंने प्रणाम किया माता को, वैसे ही सारे में माता को राम के दर्शन होने लगे। सारे चारों दिशा में एकदम राम 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 राम। So suddenly she realized that one, he didn't get mistaken. मैं सीता के रूप में हूँ, उनको कोई शक नहीं है कि मैं कौन हूँ, कोई शक नहीं है। और दूसरा ये माया, राम राम राम, सारे में राम राम, जिधर देखो वहां राम, इतने सारे राम हो। तो माता ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया फिर भगवान को, जैसे भगवान शंकर ने किया था, और वापस चली गई। जब वापस गई तो भगवान शंकर ने पूछा कि आप आ गए, सब ठीक है? भगवान जी पता चल गए, राम जी पता चल गए, टेस्ट लिया आपने? तो माता ने बोला, नहीं भगवान, मैंने टेस्ट कहाँ लिया प्रभु, मैंने टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बस जैसा आपने किया दूर से प्रणाम करके आ गई, प्रणाम रह गया था मेरा, मैं दूर से प्रणाम करके मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया। भगवान की माया है। देवी उस समय
झूठ बोल गई, क्योंकि इतना गलती उनसे हो ही गई थी। और सती, जैसे हम बोलते हैं ना, वी आर जस्ट ह्यूमन, सो लाइक इवन द डिवाइन समटाइम्स इज जस्ट नॉट डिवाइन इनफ। तो भगवान शंकर ने अपनी तपोबल से, ऐसा कैसे कि सती गई और उन्होंने टेस्ट नहीं लिया, खाली प्रणाम तो पहले मैंने बोला था तभी प्रणाम कर लेती। तो क्या हुआ, तो उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि भगवती ने सीता माता का रूप लिया है और भगवान राम जी से बात कर रही है। तो अब आप और मैं होते तो क्या बोलते, जैसे मेरी माँ होती ना, पहले ही 2 चपाट, झूठ कैसे बोली, है ना। तो पढ़ने चाहिए थे, झूठ झूठ बोलने का क्या रीजन, झूठ बोल कैसे बोले झूठ। ये भगवान शंकर है, किसकी पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, इनके अंदर बहुत मर्यादा है। तो क्या बोले भगवान, भगवती ऐसा नहीं है, राम जी की तो माया ही ऐसी है, उन्होंने आपको थोड़ा फुसला दिया, बहला दिया, इसलिए आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो ऐसा बोल दिया, पर उसके बाद भगवान ने अपने मन में संकल्प लिया और संकल्प ले लिया कि ये तो माँ है, माँ स्वरूप है, जब भी इनको देखूंगा, जब कोई गलत काम करता है उसको बार बार देखते हैं तो याद आता है ना गलत काम क्या किया उसने, है ना, याद आता है कि क्या गलत काम किया। तो भगवान शंकर है, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जब भी देखूंगा तो वो माता का स्वरूप दिखाई देगा, सीता माता का स्वरूप दिखाई देगा, तो गलत काम तो आए ना आए माता जरूर दिखेंगी। तो इनके साथ संभोग तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये जब माता वापस आई ये पूरा टेस्ट लेके, तो भगवान ने उनको वामांग में नहीं बिठाया, सामने बिठाया। बताइए क्या हुआ। और उसके बाद उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं इनके साथ, जो हमारा परिवार है या गृहस्थ जीवन है, उस परंपरा से मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे को बार बार माता दिखेंगी। तो उन्होंने संकल्प जब लिया तो आकाशवाणी हुई कि धन्य प्रभु, क्या संकल्प लिया। और सती माता पूछती रह गई, भगवान क्या संकल्प लिया आपने, प्रभु बताइए क्या संकल्प लिया। भगवान कुछ नहीं बोले और 26 वर्ष तक के लिए, 26,000 वर्ष, 26,000 years के लिए समाधि में बैठ गए। किस चीज की समाधि, वही राम नाम की समाधि, वही राम जी की समाधि में बैठ गए कि अब मैं अगर रहा तो फिर गृहस्थ धर्म का पालन ना हो, कैसे हो सकता है, इसके लिए वो समाधि में बैठ गए भगवान से प्रेरणा लेने के लिए कि संकल्प का पालन कैसे हो। तो सती माता पूछती रह गई और उसके बाद भगवान समाधि में चले गए। और जब समाधि उनकी टूटी 26,000 वर्ष के बाद, जब उन्होंने आंख खोली तो राम राम ही जप रहे थे, राम राम ही जप रहे थे, क्योंकि राम जी की समाधि ली थी उतनी देर। और वहां से ऊपर से लोग जा रहे थे, दक्ष के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हुआ था। आगे की कहानी आप लोगों को पता ही है, मगर इसमें पूरी कहानी में एक तो शिव जी ने कैसे व्यवहार किया, भगवान ने कैसे व्यवहार किया,
और माता की अज्ञानता ने कैसे व्यवहार किया। ना तीनों चीजें बहुत समझने लायक हैं। You have to think about it, deeply think about it, deeply try and understand it. बड़ों की बात का, बड़ों के आचरण का फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई बड़ा बोल रहा है ये ऐसा है तो बात मान लो, आर्ग्यू करने की कोई जरूरत ही नहीं। कुछ महीने हो गए, साल हो गया होगा शायद, जब खुशबू शुरू में आई थी, इसके कुछ कंफ्यूजन थे कि हमारे घर में ऐसा होता है पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सिंपल आंसर है, क्या करना चाहिए बताओ, बता पुलकित, क्या करना चाहिए। बड़ों का लाइक बड़ों की बात माननी चाहिए, बट उसके आगे बट नहीं होता। अगर बट आएगा तो फिर दिक्कत होगी। हम लोग बट अपनी रिस्पेक्ट हमें लाइक फैक्चुअली भी पता होता है, कभी कभार बड़े भी लाइक आपको आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट, लाइक कभी कभार बड़े भी लाइक गलत कर देते हैं। आई डोंट नो। बड़े एज इन ट्रेडिशन, whatever is the tradition, you should follow the tradition, not one individual. और जब आपसे बड़े कोई ऐसे हैं जिनको आपने परखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि सही ही बात हो रही है, तो उसको बाद में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। कहीं एक जगह तो आदमी को अपना दिमाग सरेंडर करना चाहिए। अगर वो जगह आपको, वो इंसान आपको मिल जाता है आपकी लाइफ में, तो बड़ा आसान है, लाइफ बहुत आसान है, सरेंडर बड़ा आसानी से हो जाएगा। बट सती माता को तो शंकर भगवान मिल गए थे, और मेहनत के बाद मिले, लड़ाई झगड़े के बाद मिले, इतना दंगा हुआ उसके लिए, प्रजापति दक्ष इतने नाराज हुए, पिताजी की बात नहीं मानी, भगवान शंकर से शादी की, स्वयंवर करा, तो बड़ी मुश्किल से मिले, बड़े सालों के बाद मिले, बहुत ढूंढने के बाद मिले भगवान शंकर, और फिर उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने क्या बोला, देवी प्रणाम करो, इतना ही तो बोला, कोई बड़ी चीज तो नहीं है, बात नहीं मानी। फिर भगवान जो जहां अपना मर्यादावश इंसान के रूप में है, इंसान के रूप में सीते सीते, पर फिर भी भगवान नहीं, अपना भगवत्व नहीं छोड़ रहे। ही इज नॉट लीविंग हिज डिविनिटी, दिखा नहीं रहे पर छोड़ भी नहीं रहे। दिखाते नहीं ना, राम जी पूरी कथा में कहीं दिखाते नहीं कि मैं भगवान हूं, पर छोड़ भी नहीं रहे। जब अगस्त्य मुनि और शंकर भगवान बोल रहे भगवान दर्शन दे दो, तो वो ऊपर ही चले गए, पहाड़ चढ़ गए, हो सकता है माता यहाँ होंगी। तो जब भक्त बुला रहे हैं तो भगवान कुछ भी कर रहे हो, इतने वियोग में भी हो, तब भी वो जाएंगे। भगवान जब आए तो भगवान आशुतोष, शंकर भगवान खुश, इतने खुश, दर्शन हो गए भगवान के, इतने खुश, बहुत खुश। अब सोचने वाली बात ये है कि भगवान दुखी हैं और भगवान शंकर खुश हैं। जब आपके प्रभु दुखी हैं तो आपको दुखी होना चाहिए, आप खुश क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान शंकर तो जानते हैं ना भगवान है, लीला कर रहे हैं, उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ये भगवान है। अगर डाउट होता तो वो भी दुखी हो जाते, वो भी चलते, चलो मैं भी ढूंढता हूँ सीता माता, है ना। उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि भगवान है। कभी कभी जब कोई ऐसा बड़ा ना इंसान की तरह काम करे तो उसके अंदर भगवान ढूंढ लिया करते हैं।
है ना बेटा, जो आप बोल रहे हो ना पुलकित, कभी कभी बड़े भी कुछ ऐसा काम कर देते हैं, माया है, व्यवहार है, व्यवहारिक काम कर रहे हैं, तुम अपना अच्छा ही देखो उसमें। तो भगवान शंकर बहुत खुश, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि भगवान है। और आखिरी बात, एक डिफरेंस संकल्प का और प्रण का, यहाँ पे चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छे हैं तुलसीदास जी के। उन्होंने बोला संकल्प किया, और हम सुनते हैं प्रतिज्ञा या प्रण, है ना, हमने महाभारत में सुनी भीष्म प्रतिज्ञा या प्रण, जैसे भीम ने लिया, या डिफरेंट। तो ये संकल्प और प्रण का डिफरेंस बहुत ब्यूटीफुल है। संकल्प वो जो आप अपने लिए लो और मन में रखो, और प्रण वो जो दुनिया को दिखाने के लिए, जताने के लिए कुछ। संकल्प में कभी ईगो नहीं होता, और प्रण में हमेशा बहुत ज्यादा ईगो होता है। तो भगवान शंकर प्रण कैसे ले सकते थे? वो तो संकल्प ही ले सकते थे, क्योंकि उनके अंदर तो ईगो मात्र भी नहीं है। He is complete consciousness. How can he have ego? तो उन्होंने संकल्प लिया, और माता पूछती रह गई, भगवान बता तो दो क्या संकल्प लिया। और संकल्प बताया नहीं जाता, किया जाता है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें, ये आपको समझ में आएंगी, छोटी छोटी चीजें। और इस कथा से मन क्या होगा? कोमल हो जाएगा, निर्मल। अभी ये दिशा बैठी है यहाँ पे, 1 घंटे से रो रही है बेचारी। मैं 5 बार पूछ चुकी हूँ, बेटा मेरे बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं था आपको बुरा लगाने का, है ना, मैं किसी इस मंशा से बोल ही नहीं रही हूँ, पर वो मन है। निर्मल मन हमेशा, जब आपका मन निर्मल हो जाता है, तो फिर अपने आप स्वतः ही आंख से आंसू निकलने लगते हैं। कभी कभी होता है जब हम किसी मंदिर जाते हैं या किसी के दर्शन करते हैं, ऐसे कभी कभी होता है कि लगातार आदमी रो रहा है, कुछ गया नहीं, कुछ खोया नहीं, आत्मबोध होता है। आत्मबोध मतलब, आत्मबोध का मतलब, आत्मबोध होता है जब आत्मबोध होता है। आत्मबोध मतलब कि व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ना, अपना, अपने आप को देखने की शक्ति, या अपने से बड़े को देख पाने की शक्ति, दोनों चीजें ही आत्मबोध बोले जाती है। अपना, अपने को देखने की शक्ति या अपने से बड़े को देख पाने की शक्ति, दोनों को ही हम आत्मबोध बोलेंगे। जब हम खुद को देख सकते हैं कि हम, हमारे अंदर कितनी खामियां हैं, we are so small and so incomplete and so wrong all the time, तो भी आदमी निर्मलता से ना, आत्मबोध की वजह से झरझर आंसू बहाता है कि मैं कितना छोटा हूं। I remember when I met Swami Ji, first time I met him. कहाँ थे हम लोग? मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में। कहाँ है भाई केव्स, अजंता अलोरा? Nobody knows.
अरे बता दो यार, शहर का नाम तो बता दो, गूगल करके बता दो। या देखो, मैं या तो नाम याद रख सकती हूँ या कहानियां, तुम डिसाइड कर लो, फटाफट नाम ढूंढ के बताओ। अजंता ये नाम का। औरंगाबाद। हाँ, औरंगाबाद। औरंगाबाद, थैंक यू वेरी मच। So we were in Aurangabad and Swamiji it was a very interesting story. I don't think I've ever told you guys this story, right? Let me tell you this story. So it was me, Vishwani and Deepa. And my thought was कि भाई वहां पर मेरा फेवरेट ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? दोबारा गूगल, गूगल इसीलिए बना है गूगल। यही काम करने के लिए गूगल का निर्माण हुआ है। कृष्णेश्वर। सबको मिल गया? ओके। मेरा फेवरेट ज्योतिर्लिंग है। और ये दो टूरिस्ट भी थे साथ में। मैंने कहा मैं मंदिर जाऊंगी, तुम लोग भी चल लेना, ये सत्संग है। मैं जाऊंगी तो जो लोग होंगे साथ में जाना पड़ेगा, बेचारों के पास चॉइस नहीं है। तो तुम भी चल लेना और मंदिर जाएंगे। तुमने जो केव वेव्स देखनी है वो भी देख लेंगे। तो ये मंशा लेके अपन लोग पहुंचे औरंगाबाद। अब when I'm traveling, for those of you who've traveled with me, you know that from the moment you get on the flight, you have to start chanting. The moment you get up in the morning, you have to go to a temple, right? Otherwise, something's wrong with the day, with the travel, with the trip, right? So पूरी लिस्ट बनाई गई। रात को मैंने बताया कि ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है। जो चार मंदिर हैं, ये चार मंदिर जाने हैं, तो सुबह सुबह तुम लोग 6 बजे तैयार हो जाना, मंदिर जाएंगे। तो खैर 7 बजे तक अपन लोग निकले। और 7 बजे निकल के हम सबसे पहले कौन से मंदिर जाएंगे? कोई और ट्राई करे? कृष्णेश्वर तो नहीं जाएंगे। सबसे पहले कौन से मंदिर जाएंगे? गणपति, गणेश जी के ऊपर है ना, गणेश जी के टेम्पल में जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पहुंचे गणेश जी के टेम्पल में। और बहुत पुराना मंदिर है वहां पर, एक गणेश जी का, बहुत मतलब इन द सेंटर ऑफ द सिटी है। बहुत पुराना मंदिर है। पूजा वूजा करी, पूजा मतलब चैंटिंग करी अपना, और तो कुछ। 7 बजे ना कोई दुकान खुली होती है, ना कोई मिठाई चढ़ती है, कुछ नहीं होता। 7 बजे हमने पूजा करी। तो एक बूढ़ा मराठी आदमी, बूढ़ा, बहुत बूढ़ा था। आधी जो धोती भी, वो ऊंची वाली धोती पहनी हुई थी, ट्रेडिशनल टोपी लगाई हुई थी, और थोड़ी धोती फटी हुई भी थी। अ, उसने बोला कि सुबह उठ जाओगे? मैंने कहा हाँ, उठ जाएंगे सुबह। कहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा मंदिर में भगवान ने पता नहीं किसको भेजा है, कहाँ लेके जाएंगे। ठीक, तैयार रहना। 6:30 बजे। कहाँ रहते हैं आप? होटल का नाम बताया। ठीक है, मैं आऊंगा, लेके जाऊंगा। ठीक है। तो ये दोनों तो सो गए, ऑब्वियसली, आफ्टर द डेज साइट सीइंग एंड व्हाटएवर एल्स। सुबह 6:30 बजे मैं ही तैयार हो सकती हूँ, तो मैं तैयार होके खड़ी हो गई। उस सुबह रिसेप्शन से फोन आया, अजीब सा आदमी आया आपको मिलने के लिए। अब मैं नीचे गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ लेके जाऊंगा। चलो ठीक है। He was such a beautiful old person that there was no way to communicate anymore and there was no way to say no to him. So I said definitely मैं आपके साथ चलूंगी, चलिए। तो उसने एक ऑटो बुला रखा था, तो वो ऑटो में अपन दोनों बैठे और गए, किसी के घर पे गए। और बाहर बहुत सारे चप्पलें रखी हुई थी, और सामने स्वामी जी बैठे थे, और वो अपना सुबह का पूजा कर रहे थे, जो नॉर्मल है।
तो उन्होंने मुझे बिठा दिया, वे वेट करो मिलना है। शंकराचार्य से ऐसे ही कौन मिल सकता है, तो वेट करो। बट आई वाज सिटिंग राइट देयर, राइट हियर शंकराचार्य जी, एंड आई वाज सिटिंग हियर। एंड मैं सोच रही हूँ मेरी किस्मत, ये तो अपॉइंटमेंट से भी नहीं मिलते, ये तो मिल ही नहीं सकते, और मैं बैठी हुई हूँ, इनकी पूजा में बैठी हुई हूँ। आई एम लिसनिंग टू हिम डू हिज रुद्री, like, and in that moment my heart was so filled with gratitude and surrender, and the fact that I'm not worthy and still I'm getting to do this, that I started crying, and I was crying and crying and crying and crying and crying, and I was crying for 4 hours. And he met me and he talked to me also. I don't remember what he said, I don't remember what I said. I was crying and crying and crying. So this is Atma Bodh. Kabhi kabhi, once in a while. It happens in temples also, happens when you're sitting with a teacher also. Happens when you're in the thought of uh, your God also. जैसे मीरा जी रो रही है, कृष्ण जी आ नहीं रहे हैं, तो मीरा जी रो रही है, रो रही है, उनको कौन संभालेगा, उनका रोना कब बंद होएगा। ये मैं छोटी हूँ, इसको सोच के आप आ नहीं रहे हो मुझसे मिलने के लिए। मैं राधा नहीं हूँ इसलिए आप मुझसे मिलने नहीं आओगे क्या। जब ये सोच के उनको रोना आ रहा है। अभी मैं दिशा को बता रही थी, कबीर बोलते रहे, मैं मेरे से तो बुरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पूरा जगत देख लिया मैंने, छान मारा, मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। तो ये क्या क्या बताया मैंने, इसका क्या वर्ड है, आत्मबोध। जब ये दिखता है ना कि मैं बहुत छोटा हूँ, I am very small and I am very broken and I am very flawed and I have a long way to go which I won't be able to finish in this lifetime or the next after that. So कभी कभी ऐसे में बहुत ज्यादा आदमी अपने आप ही आंसू बहते रहते हैं, रोता है। अब मैं क्यों बता रही थी? Somebody tell me, why was I telling you this? Atma Bodh, Didi, you were explaining Atma Bodh and What what it entails. Oh, you difference between Sankalp and Pran, then Atma Bodh came. You were explaining us what is Sankalp and what is Pran, then Atma Bodh came. I lost. Do you remember what I was saying? Started with Atmabodh and why you start tearing up. Yeah. So this is a very good characteristic, that you are in the presence of an entity or a philosophy or a thought bigger than you. And often you will find when you're listening to Ramayana, जब आप राम जी की कथा सुनते हैं तो अश्रुधार नेचुरल है, लगातार आंखों में आंसू भर जाते हैं, लगातार आंखों से आंसू छलकते हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल एक मेजर है। अभी हमने कथा शुरू नहीं की है, उसके गुण ही बता रही हूँ मैं आपको। ये मेजर है कि क्या इसकी प्रेजेंस है, कि भगवान शंकर भी रो रहे हैं और उनको तो पूरी ही समझ में आती है तो वो रो रहे हैं, और हमें जो आधी पौनी समझ में आती है ना, उतनी छोटी मोटी कहानी भी समझ में आती है, उसमें भी हम रो जाते हैं। सो इससे क्या होता है, जब ये ऐसे आपकी आंखों से आंसू टपकते हैं, जब
इस feeling में, not because you're slighted or because you're wronged or because you're not getting something that you desire or not like that. जब ये आत्मबोध की वजह से आपका अश्रुधार होता है या आप if you start tearing up because of this deep something that is touching you so deeply that you don't even have the words to articulate it. When this happens, it really cleanses the vasanas that you have. Does that make sense? It cleanses the vasanas. Everybody understands vasanas? Yeah. What are vasanas? Piyush? Desires, Didi. What are Lust. Indulgence. I lost it. What are vasanas, Monica? Vested interests. No. Khushbu? These are the patterns that we are carrying forward from many past janmas and this janam, and which is actually deeply rooted in our karma and in our desires. Very nice. Excellent. Vasana is what you are, what your man, buddhi, chit, ahankar, the 4 states of your mind are constructed as. Everybody is not the same, right? When Piyush is talking about himself, he's talking differently, and he sees the difference between him and his wife, or him and his son, and him and his teacher. He can, everybody can feel the differences between yourself and somebody else. हालांकि सबका आंख 2 है, नाक 1 है, मुंह पूरा भगवान ने दिया है, 32 ही दांत दिए हैं, ज्यादा नहीं है, एक लिवर है, 2 किडनीज है, सब बराबर है. फिर ये आदमी इतना डिफरेंट क्यों? And a circus size भी almost, small, medium, large, extra large, that's it. पर आदमी में इतना फर्क क्यों? देखने के नजरिए में इतना फर्क क्यों? सुनने की शक्ति में इतना फर्क क्यों? ये कोई फिजिकल डिफरेंस है क्या हमारे अंदर? हर चीज के अप्रोच में इतना फर्क क्यों? सो वो जो फर्क है ना, जो एक से दूसरे को अलग करता है, वो वासना. You are hard coded like that. Everybody is hard coded like a certain way. And this hard coding happens over lifetimes. आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको. जैसे कि पीयूष बोलता है, जो ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर है वो मेरी बीवी के अंदर नहीं है, पर जो हार्डवर्क उसके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है ना? जो पीछे पड़ने की शक्ति उसके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है. तो ये कहाँ से आई, कब आई? इस लाइफ टाइम में आई. लाइफ टाइम से पक रही है. You were the same. Many lifetimes you've been the same. और उसमें एक जो चीज जो हमेशा हर लाइफ टाइम में हमारी और पक्की होती जाती है ना, वो है ईगो. इसलिए उसको स्थान ही भगवान ने अलग दे दिया. मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. अहंकार बहुत बड़ी वासना है. अहंकार इतनी बड़ी है कि इसको कोई नहीं हटा सकता. इसके लिए मैं ही खत्म करना पड़ेगा, यानी कि पूरा शरीर ही खत्म करना पड़ेगा. अहंकार हटाने के लिए मैं हटानी पड़ेगी. मैं हटाना तो बहुत मुश्किल काम. अब जैसे पीयूष आया, बोला दीदी हमने ये काम कर दिया, अब तक खत्म हो जाएगा. तो कर दिया, खत्म हो जाएगा, तो मुझे बताने की क्या जरूरत? वेरी गुड. अगर आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे?
दीदी ये काम हुआ अभी तक, इतना बचा है, ये चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि इतने टाइम तक हो जाएगा, अब बताइए आगे क्या करना है। ये सही तरीका हुआ बोलने का? ईगो पर वो कुछ कर नहीं सकते, उसमें मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर सकती हूँ, और उसके बाद क्या होगा, आत्मबोध होगा, उसके बाद ग्लानि होगी, ग्लानि एज इन गिल्टी फीलिंग, या तो आप वहीं पर रोओगे या बाद में बहुत गिल्टी फीलिंग आएगी, मैं क्या किया, ये कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये लगातार ऐसे ही अगर चलता रहेगा, आत्मबोध होता रहेगा, तो वासना खत्म हो जाएगी। कौन सी वासना? सबसे बड़ी वासना कौन सी? अहंकार। सबसे बड़ी वासना ईगो, सबसे बड़ा पैटर्न ईगो। लगातार अगर आपको ये दिखता रहेगा कि आपने गलती कहाँ करी, आप गलत कैसे बोल रहे हैं, आपके बोलने का तरीका कहाँ गलत है, आपकी सोचने का ढंग कहाँ गलत है, आपके रहने का, जीने का नजरिया और तरीका कहाँ गलत है, जब हम राम जी की कथा सुनते हैं तो गलती अपने आप ही दिख जाती है। जब भरत जी आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी खड़े हैं, आ गया भरत, लड़ाई करने आया, क्या लेने आया, राज तो ले लिया इसने, अब क्या लेने आया है? है ना, जैसे कोई भी कुछ भी होता है ना, माय फादर विल ऑलवेज गो टू, चोरी कर ली इसने, ले लिया होगा डेफिनेटली, इसने गलत किया होगा, पहले अरे आपके पास ही रखा होगा कहीं, पहले देख तो लो। नहीं, लक्ष्मण जी ऐसे ही थे, क्या लेने आए हैं? राम जी का चरित्र बिल्कुल अलग है। सो जब हम राम कथा सुनते हैं तो ये हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे, जहां भी राम जी बोले चाहे ना बोले, आत्मबोध रहता है। उसको ध्यान से सुनेंगे तो लगातार आत्मबोध रहेगा, आत्मबोध रहेगा, तो अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, वासना बदल जाएगी, सब चेंज हो जाएगा। सो इसलिए कथा का इतना इम्पोर्टेंस है, इतनी पावरफुल है ये, कि कलयुग में बोलते कलयुग से बचा लेगी। कलयुग का एक ही एक ही उपाय है, राम जी का नाम। नाम खाली लेने से कुछ नहीं होता, समझना भी पड़ेगा ना राम जी कौन है, उसको डीपली मेडिटेट करना पड़ेगा ना। हम कर सकते हैं ऐसा? भक्तों ने क्या किया, हम कर सकते हैं ऐसा? तरीका क्या था करने का, हम कर सकते हैं ऐसा? तो लगातार आत्मबोध होता रहेगा, तो लगातार ये वासनाएं मिटती रहेंगी, कम तो हो ही जाएंगी, थोड़ी कम तो हो ही जाएंगी। तुलसीदास जी बोले कि इतनी बार मेरे गुरुजी ने बोला तो मुझे समझ में नहीं आया, हजारों बार सुनी मैंने कथा, मुझे समझ में नहीं आई, पर हर बार सोचो तुलसीदास जी कितने चेंज हुए होंगे, बदले होंगे ना थोड़े थोड़े। इतने बदल गए, इतने बदल गए, इतने बदल गए कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा, इतने बदल। और 3 चीजों का हम हमेशा उल्लेख करते हैं जब भी हम, when you talk about philosophy, deep philosophy, and philosophy is something everybody should study. For those who do not study, I would recommend they study philosophy. Yeah, बिना philosophy के पाठ करने का कोई फायदा नहीं है, आदमी बदल ही नहीं सकता और समझेगा ही नहीं कि क्या बदल रहा है। So philosophy you should study. और philosophy के 3 मेन, एक्चुअली 2 मेन पिलर्स हैं, एक राग और दूसरा वैराग। राग मतलब You're liking towards anything. अटैचमेंट्स, या
Rag matlab all the attachments that we have in life. Attachment to our ego, attachment to our likes, attachment to our dislikes, attachment to our wants and desires and our attitude. We have attachment to everything, correct? Yes or no? All these attachments, which is categorized as rag. और जिसको ये attachment नहीं हो, वो किसमें? वैराग. करेक्ट? तो जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है. एक तो राग, अभी राग समझ जाओगे तो इससे ऊपर उठने की कोशिश करोगे. और दूसरा वैराग है ना, कि ये तो गोल है अपना, दिस इज डेस्टिनेशन. वैराग इज द डेस्टिनेशन पॉइंट. वैसे भी बोलते हैं संन्यास ले लो, संन्यास ले लो, संन्यास ले लो, संन्यास ले लो. हर बार बेचारा पुलकित पूछता है संन्यास, खाली इसके अलावा कोई और चारा नहीं है क्या? हर बार संन्यास ही आप बोल देते हो, कुछ और भी बता दिया करो, है ना? क्या? विद ड्यू रिस्पेक्ट, like he says, with due respect, is it not possible to live and then just do chanting and somehow, you know, still be good and valid in this world? With due respect. So, but philosophy, with the subject is this. The subject, when you study philosophy, you are studying either rag or vairag, and the disadvantages of rag and the advantages of vairag. And all philosophy will tell you to move from rag to vairag. But समझने के लिए फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, उसके ये खाली इतना से नहीं चलेगा, वो तो पढ़नी चाहिए. मगर उसमें एक तीसरी चीज है जो इस कथा में आती है, और वो है अनुराग. तो अनुराग क्या है? अनुराग का मतलब एनीबॉडी? गूगल go to Google. जैसे आपने पहले बोला था निर्मल प्रेम, इट्स दैट सेल्फलेस लव. Go to Google. ओके. प्रेम और भक्ति. और किसी को और कुछ मिला? Anybody else? पीयूष, क्या मिला अनुराग का मतलब? So Didi just searching. इटर्नल. स्नेह, आराध्य, लगाव, भक्ति, प्रेम. Is it intense attachment? I know Kalika made so you're like एकदम Kalika made a rag. But rag is not a good thing. But this is not. But लोगों का नाम भी आ जाता है अनुराग, तो अच्छा तो होगा ना नाम, कुछ गलत तो नहीं लिखते होंगे माँ बाप, बेचारे सोच के रखते हैं, अज्ञानतावश ही अच्छा नाम रख देते हैं. It's the rag towards the Bhagwan, attachment to the God, rather than to your desires and your this thing. So ये राग और विराग के बीच में कहीं है दीदी? तो पुलकित के क्वेश्चन का जवाब ये है कि बिल्कुल आप रह सकते हैं अगर आपको अनुराग हो. दृढ़ अनुराग के साथ आप पूरा संसार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. किससे होना चाहिए? डिवोशन. राग चाहिए. राग, आम आदमी का राग किससे होता है? मटेरियल थिंग्स. और अनुराग किससे होता है? भगवान से. तो ऑफन द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि भक्ति मार्ग है तो आसान, पर जाएं कैसे? हम तो भक्ति करते नहीं.
तो भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? भक्ति करने के लिए चाहिए अनुराग, और उसका माध्यम क्या है? रामायण। और तुलसीदास जी बोलते हैं, आपने सुनी है चौपाई? लेट मी फाइंड इट। रीड। पढ़ा जा रहा है? सुनिए ऑनलाइन। पढ़ तान्या। शुरू से यहाँ से पढ़ो बेटा। वैसे ही पढ़ लो बेटा, प्रोज पढ़ लो। बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई ना दृढ़ अनुराग। मतलब बताएं। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के ना हरि कथा, भगवान की कथा नहीं हो सकती। सत्संग के बिना भगवान की कथा नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की बात करने वाला तो कोई सत्पुरुष ही होगा ना जो भगवान की बात करेगा, वरना कोई कौन भगवान की बात कौन करता है? जैसे अब तुम बता रहे थे, कोई बात करता है, क्या बात करता है? यहाँ गए वहां गए, ये किया वो किया, सब सब राग की बात करते हैं ना। अनुराग की बात कौन करेगा? कोई सत्पुरुष ही होगा जो अनुराग की बात करेगा। तो बिनु सत्संग ना हरि कथा, अगर तुम सत्संग में नहीं बैठोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, गुरु के पास या कहीं अच्छी जगह, मंदिर कहीं अच्छी जगह बैठो, तो हरि कथा सुनने मिलेगी, भगवान के दर्शन होंगे, कथा सुनने को मिलेगी। ते बिन मोह न भाग, उसके बिना मोह, आप आदमी का राग, ते बिन मोह न भाग, उसके बिना मोह भाग नहीं सकता। बिनु सत्संग न हरि कथा, और हरि कथा के बिन, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो वही ना दृढ़ अनुराग। मोह गए बिनु, मोह के जाने के बिना, मोह को भगाने के बिना, अगर मोह को नहीं भगाया तो राम पद हो वही ना दृढ़ अनुराग। राम जी की का अनुराग आप नहीं कर सकते अगर मोह नहीं गया आपका, तो बाकी मोह को भागना पड़ेगा, तब अनुराग होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। तो हरि कथा के साथ, सत्संग की वजह से हरि कथा की वजह से मोह जाएगा, और बिना मोह गए, अगर मोह नहीं गया आपका, तो राम पद के, राम जी के पांव के चरणों के साथ दृढ़ अनुराग नहीं होगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध। एक घड़ी कितनी होती है बताएं जरा, गूगल बाबा।
What is ghadi in today's meter of measure of time? $60? क्वेश्चन नहीं, आंसर चाहिए. I need 4 minutes. 24 मिनट. आधी घड़ी. 12 मिनट. आधी से पुनी आध. 6 मिनट. तुलसी सत्संग साधु की हरे कोटि अपराध. अगर 6 Sorry. मिनट भी किसी, What actually ghadi is? 24 minutes. Like, what are we talking about? Like, It's a measure of time, old measure of time. okay, sorry, okay. घड़ी is an old measure of time. एक घड़ी, आधी से पुनि आध. तुलसी सत्संग साधु की हरे कोटि अपराध. तो अगर आप साधु के साथ 6 मिनट भी बैठ गए. मैं अपने कजन के पास गई, उस दिन मिलने गई थी, तो बोला याद है हम मंदिर गए थे. मैंने कहा हाँ बिल्कुल याद है मंदिर गए थे. तो तुझे याद है हमारी बस छूट गई थी उसके बाद क्योंकि तू बैठ गई थी. कोई पंडित जी थे वहां पे, वो बात कर रहे थे, कहानी सुना रहे थे. मैंने कहा बैठो बैठो. तो भैया भी हमारे ऐसे हैं कि मैंने बोल दिया बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं, सुनते हैं बात थोड़ी बहुत. तो वो भी बेचारे बैठ गए. अच्छा कुछ हो रहा होगा. चल रहा था, बात चल रही थी. सत्संग में अपन बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे. तो एक घड़ी आधी से पुनि आध. तुलसी सत्संग साधु की हरे कोटि अपराध. और तुलसीदास जी बोलते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाग. जो राग है ये हरि कथा के बिना नहीं जाएगा और बिना सत्संग के हरि कथा नहीं आएगी. मोह गए बिनु राम पद. और अगर मोह नहीं गया तो राम पद, राम जी के चरणों में आपका दृढ़ अनुराग, दृढ़ एब्सोल्यूट. कि अकबर भी बुला के तुलसीदास जी को बोल रहा है कि तुम दिखाओ चमत्कार, दिखाओ अपना चमत्कार. बोले मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं चमत्कार क्या दिखाऊंगा, मुझे तो चमत्कार आता नहीं है. बांध दिया उन लोगों को, बंदी बना लिया. अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया. चमत्कार दिखाओ. तो ऐसा नहीं है, तुलसीदास जी ने काफी चमत्कार किए अपनी लाइफ में, मगर वहां पर अकबर ने बोला कि तुम दिखाओ तो संत चुप हो गए. मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं कैसे चमत्कार दिखाऊंगा. तो बंदर आए इतने सारे कि पूरा नगर उजाड़ दिया उसका, अकबर का. तो दृढ़ अनुराग, हिलना नहीं चाहिए. जो चरणों को पकड़ा तो हिलना नहीं चाहिए. क्या समझे आज की क्लास, कुछ समझ में आई, नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई, चलो कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा समझ में आएगी. So mostly we've discussed, so far we've discussed the 4 ghats, we've discussed Tulsidas ji, we've discussed the importance of reading Ramayana. Yeah, in the last 2 classes, we basically discussed what are you going to get is just a story. And we all know the story, by the way. ऐसा कि कोई नहीं है यहाँ पे जिसने कहानी सुनी ना हो या पढ़ी ना हो, जिसको पता नहीं हो कि राम जी थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, फिर वो वन में चले गए, फिर सीता माता का हरण हो गया, फिर वो गए और उन्होंने
लंका जाके माता को वहां से लेके और वापस आए। इतनी कहानी है। किसको नहीं पता ये कहानी? हाथ खड़े करो। सबको पता है ना? फिर भी ये कहानी सुनने का क्या महत्व है। और स्पेशली भगवान बोलते कलयुग में, क्योंकि मोह बहुत ज्यादा है, कलयुग में वासना बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है, लगातार आदमी ईगो के साथ चलता है। 30 दिन ये बच्चा बैठा रहा मेरे साथ और 30 दिन बोलता रहा मुझे स्टेज पे गाना है। और 30 दिन तक मैं इसको बोलती रही, बेटा ये कोई गोल ही नहीं होता। ना, मोह बहुत ज्यादा है। गाना गोल हो सकता है, स्टेज पे गाना गोल ही नहीं हो सकता। तो ये मोह कैसे छूटेगा? इसको छोड़ने के लिए ये रामायण का पाठ खाली पढ़ने नहीं है। हम लोग जैसे चैंटिंग करते हैं ना, उसका जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल अलग है। जब हम चैंटिंग करते हैं, वी आर इन्वोकिंग परफेक्ट साउंड संस्कृत, and we are doing it to alter our aura, we are doing it to alter the sound vibrations around us, to alter the vibrations and the aura of our individual being. Over a period of time it changes, we change. As for those of you who've been chanting, you know you've changed, right? As a human being you've changed, your likes and dislikes have changed, the people around you have changed, the matter around you has changed, everything has changed. So chanting is different, वो करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। पर ये कथा क्यों करनी चाहिए, ये मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपको समझाया। बहुत बेनिफिट्स हैं, कथा करने के भी बहुत बेनिफिट्स हैं। जो चीज फिलॉसफी से समझ में नहीं आती कभी कभी, वो कथा से समझ में आ जाती। एंड इट मेक्स यू change without allowing the ego or the anger to seep in, because those are natural byproducts of when you start doing sadhana. Anger will grow, ego will grow. But जब हम कथा करते हैं तो एंगर भी खत्म हो जाता है और ईगो भी खत्म हो जाता है और अनुराग पैदा हो जाता है। एक थर्ड आइटम आ जाती है हमारे पास, अनुराग। क्योंकि पहले हम राग और वैराग के बीच में घूम रहे थे, जब हम ये कथा करते हैं तो हमें एक अनुराग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि तुम लोग पूछते भी नहीं हो और इतना कोई होता भी नहीं है क्या? Not really. I didn't even speak much about anything. पर कुछ समझ में आया? चलो ठीक, फिर अगली बार कथा शुरू करें। चलिए, नमस्ते। 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 प्रणाम दीदी। जीते रहो बेटा।